Hello students, I am again here in front of you with last law of chemical combination, and that is law of combining volumes. Before this we have studied four laws of chemical combination. Number 1, law of conservation of mass. Number 2, law of constant proportion. Number 3, law of multiple proportion. Number 4, law of equivalent or reciprocal proportion. And now in this lesson I am taking up last law of chemical combination, that is law of combining volumes. Student, this law was given by Gay-Lussac. This law was given by Gay-Lussac in the year of 1808, and this law simply states that at constant temperature and pressure, whenever gaseous reactants react with each other and form gaseous products, the volumes of gaseous reactants and gaseous products bear a simple whole number ratio. First of all, let us read this statement from the book. So everybody look here. Law of combining volumes. This law was given by Gay-Lussac in the year of 1808. And what is its statement? Whenever gaseous reactants react with each other and form gaseous products at constant temperature and pressure, their volumes bear a simple whole number ratio. So let us understand this. Actually, Gay-Lussac performed number of chemical reactions in which all the reactants and products were in the gaseous form. In all such reactions, he discovered that there is a definite relationship between the volumes of gaseous reactants and gaseous products. So when he performed number of reactions in which all reactants and all products were in the gaseous form, then he discovered that there is a definite relationship in the volumes of gaseous reactants and gaseous products. From these observations, he proposed a law, and that law is called as Gay-Lussac's law of combining volumes. तो जो मैंने स्टेटमेंट रीड की उसके अकॉर्डिंगली व्हेन गैसियस रिएक्टेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और गैसियस प्रोडक्ट्स बनाएंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, फिर जो गैसियस रिएक्टेंट्स होंगे और जो गैसियस प्रोडक्ट्स होंगे उनके जो वॉल्यूम्स होंगे दे आर इन अ simple whole number ratio. So at constant temperature and pressure, whenever gaseous reactants react with each other to form gaseous products, their volumes bear a simple whole number ratio. Before taking examples, let's read the statement once again. Whenever gaseous reactants react with each other and form gaseous products at constant temperature and pressure, their volume means the volumes of reactants and products bear a simple whole number ratio. So students, let's
Understand this statement by taking gaseous reactions as examples. हमारा फर्स्ट रिएक्शन देखिएगा. This is nitrogen. It is in the gaseous form. It is reacting with hydrogen. It is in the gaseous form, and a product called ammonia, which is a gas that is formed. तो स्टूडेंट्स में तो देखिएगा इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं. नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ केमिकली रिएक्ट कर रही है और गैसियस प्रोडक्ट अमोनिया बन रहा है. नंबर वन, इन दिस रिएक्शन all the reactants and products are in the gaseous form. नंबर टू, आपको अगर किसी भी रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स अप्लाई करना है, द वेरी फर्स्ट वर्क इज टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. इफ यू फेल टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन तो आप करेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. तो जो भी आप गैसियस रिएक्शन लें उसको आप लिखें और फिर केमिकल इक्वेशन को कंप्लीटली बैलेंस करें. तो यहां पे बोर्ड पे हमने इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया है. हाइड्रोजन को 3 से और अमोनिया को 2 से मल्टीप्लाई किया और ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई. अब जो स्टूडेंट यहां बहुत इंपॉर्टेंट आपने स्टडी करना है, ये बॉटम पे मैंने क्या लिखा है, ये 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन. ये 1 कहां से आया स्टूडेंट? 1 यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है? यहां देखिएगा कि हाउ मैनी यूनिट वॉल्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन. यहां कुछ नहीं, तो इसका मीनिंग यहां पे 1 है, यहां पे 3 और यहां पे 2. इसका मीनिंग क्या है? इस रिएक्शन में ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये केमिकल इक्वेशन, कि 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है विद द 3 यूनिट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और प्रोड्यूस हो रहे हैं 2 यूनिट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया. तो फिर एक बार मैं होप करता हूं आप अंडरस्टैंड करेंगे. इस केमिकल इक्वेशन में क्या देखा आपने? 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है किसके साथ? विद 3 यूनिट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ. और क्या बन रहा है? 2 यूनिट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया. स्टूडेंट, ये यूनिट क्या है? पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि आप वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूनिट कौन सा यूज कर रहे हैं. जैसे यहां पे देखिए वॉल्यूम का एक यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, क्यूबिक सेंटीमीटर. पहले आपको डिसाइड करना होगा वॉल्यूम का कौन सा यूनिट लेने जा रहे हैं. अगर आप वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में लेंगे तो यहां फिर ये क्या सेंटेंस बनेगा? फिर ये वॉल्यूम्स आपके जो होंगे क्यूबिक सेंटीमीटर में होंगे. फिर मैं कहूंगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से और फॉर्म हो रहे हैं 2 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ अमोनिया. तो जब तक आप कोई वॉल्यूम का यूनिट यूज नहीं करते, जनरल डिस्कस करते हैं, तो तब तक हम सिंपली करेंगे 1V. 1V मीन्स 1 यूनिट ऑफ वॉल्यूम. वो यूनिट कोई भी हो सकता है. अगर आप वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर लेते हैं स्टूडेंट, यहां इफ यू टेक द यूनिट ऑफ वॉल्यूम एज क्यूबिक मीटर, देन व्हाट विल बी द रिएक्शन? तब हम क्या कहेंगे? 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है विद द 3 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और प्रोड्यूस हो रहे हैं 2 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ अमोनिया. तो इन दिस रिएक्शन 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद द 3 यूनिट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 यूनिट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ हमें क्या करना होगा? हमें इनके ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के हमको वॉल्यूम रेशो लेनी है.
इसका वॉल्यूम रेशो क्या है? 1 यूनिट वॉल्यूम, 3 यूनिट वॉल्यूम, 2 यूनिट वॉल्यूम। तो स्टूडेंट वॉल्यूम रेशो ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया क्या हो जाएगा? 1:3:2, 1:3:2। तो ये 1 कहां से आया? 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, 3 यूनिट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 यूनिट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। सो द वॉल्यूम रेशो इज 1:3:2। तो ये एक एग्जाम्पल थी। अब हम स्टूडेंट बोर्ड पे अगर आप देखिएगा, हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे, विच इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल वन। इन दिस रिएक्शन gaseous hydrogen is reacting with gaseous chlorine and hydrogen chloride is formed. When we say hydrogen chloride, it means that HCl is in the gaseous form. ये याद रखिएगा, आप अर्लियर क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ एक्वस होता तो इसका नेम होता हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Since it is in the gaseous form, so HCl is hydrogen chloride. तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें फिर से 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ, कैसे पता चला स्टूडेंट 1 यूनिट वॉल्यूम? यहां देखना है, कुछ नहीं तो 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, यहां 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन और फिर यहां 2 यूनिट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो इन दिस रिएक्शन 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन reacts with 1 unit volume of chlorine and 2 unit volume of hydrogen chloride are produced. Now let us take the volume ratio of hydrogen chlorine and hydrogen chloride. So the volume ratio of hydrogen, ratio the volume of hydrogen, ratio volume of chlorine, ratio volume of hydrogen chloride. तो स्टूडेंट यहाँ पे क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है यहाँ पे। तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम रेशो? हाइड्रोजन का वॉल्यूम 1 यूनिट वॉल्यूम, क्लोरीन का 1 यूनिट क्लोरीन, 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड का 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। सो द वॉल्यूम रेशो इज 1:1:2। अगेन इट इज अ सिंपल होल नंबर रेशो। तो क्या आप इन 2 एग्जाम्पल्स में अंडरस्टैंड किए हुए हैं? टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट है, रिएक्टेंट्स, ऑल रिएक्टेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन गैसियस फॉर्म में हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ऑल प्रोडक्ट्स गैसियस फॉर्म में हैं। गेलुजैक डिस्कवर करता है कि there is a definite relationship between the volumes of gaseous reactants and volumes of gaseous products. And what is that definite relationship? Volumes of gaseous reactants and volumes of gaseous products all are in the simple whole number ratio. तो एक और एग्जाम्पल जो आप खुद करेंगे स्टूडेंट, यहां होमवर्क, हाइड्रोजन विच इज इन द गैसियस फॉर्म, ऑक्सीजन विच इज इन द गैसियस फॉर्म, एक रिएक्शन में वो रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करने पर H2O गैसियस फॉर्म में बन रहा है। मैंने यहां पे लिखा है स्टीम। तो आपको इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और H2O इनका वॉल्यूम रेशो खुद फाइंड आउट करना है। तो मैं होप करता हूं आप इसको करेंगे और याद रखिएगा, किसी भी गैसियस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम रेशो फाइंड आउट करने से पहले यू विल हैव टू बैलेंस दैट केमिकल इक्वेशन, अदरवाइज आप ये नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट दिस इज यस लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स एंड विद दिस हमारा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट फिनिश होता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और अब हम नेक्स्ट इन लॉस के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट लेक्चर, लेट अस recapitulate the statements of all the 5 laws of chemical combination very rapidly. Law of conservation of mass simply state करता है
total mass before the reaction, reactant का total mass of the reactant before the reaction is always equal to total mass of the product after the reaction. Law of constant proportion, what does it state? A pure chemical compound always consists of same elements combined together in a same and fixed ratio by mass. Law of multiple proportion, what is its statement? When two elements combine to form two or more compounds, the mass of one of the element which combine with the fixed mass of the other element bears a simple whole number ratio. Law of reciprocal or equivalent proportion, the ratio of the masses of the two elements which combine with the fixed mass of the third element is either same or bears a simple whole number ratio. And law of combining volumes you already know. The ratio of the volumes of the gaseous reactants and gaseous products are always in a simple whole number ratio at constant temperature and pressure. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में ले रहे हैं। थैंक यू।